Julie, Salam everybody. Today we have with us Dr. Mohammad Nawaz Sharafuddin. So, as you all of you know that Dr. Nawaz has recently qualified the Union Public Service Commission (UPSC) examinations, and he is from the Dras village in Kargil. And he has scored the All India rank of 778. So I think he is the first, maybe the second from the Kargil to qualify the UPSC examinations. And we all are proud of you. And I, on behalf of the Science Foundation and all the youth of Ladakh, congratulate you on qualifying this prestigious examination. So, Dr. Nawaz holds a bachelor in veterinary science and animal husbandry from SQUAST, Srinagar. And after that, he has done masters in veterinary science in poultry science from IVRI UP. After that, he has worked as a veterinary officer in Al Fanis Frozen Food Export Private Limited, Ghaziabad, Delhi for a short period. And he also got appointed as assistant manager in the JNK Grameen Bank. And currently, he is working as a veterinary officer in the sheep husbandry department in Kargil, Ladakh. So he is inspiration to the all the he is a role model to the all the students from particularly from the Kargil area. And congratulations to you and all your parents. So tane dri ka switches po tane Dr. Nawaz la ma tuje chejun de tenegera ka shkote tene ka yandri ka students am interaction and such you know tenegera can is ka dushing the experience do civil service ko bo tene can share that and then you can talk in any language Urdu, Hindi, Ladakhi or English, whichever is comfortable to you. So now it's what to that Dr. Mohammad Nawaz Sharafuddin. Yeah, Dr. Let is start the session. सबको मेरा गुड इवनिंग सो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि टशी सर का भी जिन्होंने मुझे ये एक मौका दिया इस प्लेटफॉर्म में अपने जर्नी को शेयर करने के लिए और आई वुड लाइक टू ट्राई टू मोटिवेट एज मोर पीपल एज पॉसिबल सो मैं इसमें सबसे पहले मैं अपना एक इंट्रोडक्शन ब्रीफ दूंगा और आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस योर माई सेल्फ टू यू ऑल ऑफ यू एंड अपनी यूपीएससी की जर्नी थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ सो सबसे पहले तो मैं शिमशा द्रास विलेज से बिलोंग करता हूँ सो माय स्कूलिंग वाज फ्रॉम जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एट कारगिल so and finished and then I did my intermediate from Jahlim Public School and then after 12th through the Jammu Kashmir Board of Professional Education entrance examination I was selected for Bachelor's of Veterinary Sciences in SCOST, Kashmir. Then where I completed my BUSC in age. And after I took a gap of 1 year for the same for the reason for preparing for UPSC. Then later in that I found that it won't be sustainable for me to wholly and solely prepare for UPSC. So I wanted to have some career backup simultaneously. So I joined as for masters in IVRI through an ICR entrance examination, where I completed my masters in veterinary science in a poultry science subject in 2017. Then after that, on the back of mind, every youth there is a sense of for sense of financial security. Everyone joins to have wants some job of a kind. So मैंने एक प्राइवेट कंपनी अल नफीस फूड एक्सपोर्ट फूड प्रोसेसिंग ज्वाइन किया जहाँ पर मैं कुछ महीने काम किया था दिल्ली के पास ही था तो वहाँ पर मैंने कुछ महीने काम किया तो फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर ग्रामीण बैंक में अपॉइंट हुआ तो वहाँ मैंने खाली ज्वाइन करके फिर मैंने लीव ले ली और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू की तो 2019 जून में मैं एज ए वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में सेलेक्ट हुआ तो अभी तो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एज ए वीएस ब्लॉक वेटरनरी ऑफिसर द्रास काम कर रहा हूँ
So my journey with UPSC starts in 2014-15. Almost from the starting of 15. I did some coaching of 5-6 months in Delhi, but I could not sustain there. So I joined my masters in political science in IB Arabic. Also, I simultaneously I prepared for this particular exam. So during that, I attempted a few, but I was not successful in prelims, mainly for the CSET paper 2. And then after that, I got to know about this Jamia Hamdard and Jamia Millia, where I got one of the best environments for preparation, where you would, there is one of the best brains of minorities, SC, ST, women would get would be there, and so we would, they would guide each other, and some sort of coaching is also provided that particular place. तो यूपीएससी के मेरे सफ़र में मेरा सब मैंने 2016 में मैंने एक मेंस का अटेम्प्ट दिया था. उसके बाद 2018 में भी मैंने दिया था. इंटरव्यू में मैं से पहुंच के मैं 6 मार्क्स से फाइनलिस्ट से रहा 2018 में. तो इस साल में सक्सेसफुल रहा हूं. तो यही मेरी एक यूपीएससी और अपनी लाइफ की एक जर्नी है. सो मगर यूपीएससी प्रिपरेशन को मेरा सबसे बड़ा एक एडवाइस है कि हमारे स्टूडेंट्स को कि भी आपके पास एक रीज़न होना चाहिए व्हाई डू यू वांट टू बिन सिविल सर्वेंट, because this reason would help you to motivate whenever you won't get the results as desired by you. सो यूपीएससी की तैयारी में मे बी किसी को 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं. सो मेरे हिसाब से तो प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करनी हो तो आपको एक एनसीईआरटी बेसिक एक फाउंडेशन हो, क्योंकि आप डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं. 4-5 साल आपको ग्रेजुएशन मास्टर में तो आप अपने बेसिक्स से थोड़े दूर हो जाते हो. तो आप एक बेसिक्स आपको एनसीईआरटी से स्टार्ट करनी होती है. तो मोस्टली रिकमेंड करते हैं कि 6 से 12 तक की एक या 2 रीडिंग होनी चाहिए. उसके बाद आप 9, 10, 11, 12 को एनसीईआरटी रख सकते हो. क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ऐसा कॉमन मटेरियल जो आप एक कॉमन मैन और कॉमन इंडियन एक के पास पाओगे, जो रूरल बैकग्राउंड का हो चाहे अर्बन बैकग्राउंड का हो. तो यूपीएससी मोस्टली उसी को ज़्यादा उसी से क्वेश्चंस बनाती है और आपका बेसिक्स कवर हो जाता है. उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स या कोचिंग मटेरियल आप कंसल्ट कर सकते हो. तो बाकी तो आप यूपीएससी का पैटर्न तो आपको पता ही है. उसमें पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस में आप देख सकते हैं रिटन पार्ट भी होता है और एक पर्सनालिटी टेस्ट होता है. तो उसके बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपको पता ही है सीसेट में पेपर 1 और पेपर 2 होता है. पेपर 1 में स्टेट्स का पेपर होता है, पेपर 2 में कॉम्प्रिहेंशन और एप्टीट्यूड का होता है. तो पेपर 1 जनरल स्टडीज में आप बेसिक्स बुक्स हिस्ट्री, पॉलिटी एंड जनरल साइंस, इकोनॉमी, जियोग्राफी होता है और करंट अफेयर का होता है. इस पेपर में सबसे आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट यू शुड स्टिक टू द सिलेबस. यू शुड हैव एन गुड ओवरव्यू ऑफ ऑल दिस सब्जेक्ट. एंड main backbone to pass this paper is the 3-4 subject: polity, environment and ecology, economy and current affairs. So you have to update yourself current of last 2 years. And in paper 2 also we have comprehension, reading comprehension and aptitude. People from arts background try to prefer this comprehension part, and all those engineering background or from technical background, they usually prefer this aptitude part. But according to my experience, that for GS1, that general studies paper, I think apart from clarity of concepts and clarity of facts, you should have some cool mind during the paper itself, because आपने 5-6 महीने 8 महीने या 1 साल 2 साल की प्रिपरेशन की होगी. अगर आपको उस 2 घंटों में आपका अपना हेड क्लियर नहीं होगा, आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, तो आपका सारी मेहनत पानी में जा सकती है. तो इसलिए आप उस टाइम आपको कूल और कंपोज रहकर अपनी पेपर को अटेम्प्ट करना है. क्योंकि मैंने ऐसे एस्पिरेंट्स को देखे हैं जो बिल्कुल आप टेस्ट सीरीज में वो एमंग टॉपर्स होते हैं. जब एग्ज़ाम के दिन उनसे देखा जाता है तो पेपर अटेम्प्ट नहीं होता है, क्योंकि यही बस पैनिक होने की वजह से. सो आप जब ये पेपर अटेम्प्ट
करेंगे तो आपको एंड ऑफ द वर्ल्ड आपको सोचना नहीं है, तो आप इज जस्ट नॉर्मल एग्जाम लेके जाइएगा। सो मेंस पेपर में आपको पता है ये 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ के 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं और एसए एक होता है। तो यही एक चीज़ है जो आपको रैंक, आपका सर्विस का वो डिसाइड करेगी मेंस में। सो पेपर 1 तो मोस्टली सबको पता ही है कि ये एक स्टैटिक पोर्शन होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर और या सोसाइटी का थोड़ा पोर्शन होता है। तो मगर पेपर 3 एंड 4 जिसमें इंडियन पॉलिटी होता है, गवर्नेंस का पार्ट होता है, इंटरनेशनल रिलेशन पेपर 2 में। पेपर 4 में आप देख सकते हैं इकोनॉमी, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, जिसमें मगर ये 2 पेपर होते हैं बहुत डायनेमिक होते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको जब तक आप करंट से इसको लिंक नहीं करोगे, आपका इसमें तैयारी बिल्कुल आपकी बहुत मतलब अनफिनिश्ड होती है या आपकी कंप्लीट नहीं होती है। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। So you have to be updated with the government scheme, government policies, what is happening around the international scenario, what kind of technologies are introduced for science and technology, so that you can have an extra edge over other students. So and also for paper 4 you should you should get hold of this syllabus for mains itself. You should get hold of the syllabus, each and every word you should know, and you should wrote all those keywords of the syllabus in mind, then accordingly you can prepare. Otherwise what happens during preparation, that general studies mean general, so you can आप भटक सकते हो अब जनरल स्टडीज के चक्कर में। तो आपको सिलेबस हो गए तो आपको पूरा गाइड मिल सकता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो और पेपर 4 में आपको वही सिलेबस में इसलिए फोकस कर रहा था कि कीवर्ड्स होते हैं कुछ 60-70, वो कंसेप्ट आपको पूरी तरह क्लियर होना चाहिए, उसका क्या मतलब है और उसका रियल लाइफ में या आप हमारे सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, सोशियोलॉजी में, हमारे पॉलिटिक्स में क्या इसका इफेक्ट होता है, तो वो आपको क्लियरली होना चाहिए। तो मगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ने के लिए आप या क्रैक करने के लिए आपको एग्जामिनर का माइंड रीड करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको एग्जामिनर का माइंड रीड करना है तो प्रीवियस ईयर पेपर बहुत क्रिटिकल होते हैं, चाहे पेपर 1 प्रीलिम्स का हो चाहे मेंस का हो। सो आपको लास्ट के 5-6 ईयर्स के प्रीलिम्स के पेपर्स और उनके सॉल्यूशंस, मैं सॉल्यूशन इस पे जोर दे रहा हूँ कि अगर आप सॉल्यूशन पढ़ेंगे किसी भी स्टैंडर्ड उससे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस बंदे ने, इस एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा क्यों। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ऊपर एक लाइन होगी, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि पूछा क्यों है। अगर आंसर्स पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे, तो आपको पूछा क्यों है आपको समझ आएगा और आप उसी हिसाब से अपने नेक्स्ट स्टेप, आप अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। आप कोई भी जब टॉपिक पढ़ो तो आपको समझ आएगा यार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, सो इसी हिसाब से आप पढ़ते हो। तो आपको कंटिन्यूसली सिलेबस के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए और मेंस में भी यही होने चाहिए कि भाई ये जो एग्जामिनर इस सब्जेक्ट में किस टाइप का फोकस, फैक्चुअल है, कंसेप्चुअल है या ओपिनियन बेस्ड है, तो वो आपको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। और मेंस में एक और क्रिटिकल बहुत एक राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आप देख सकते हैं एक आम आदमी या एक स्टूडेंट जो इतना पढ़ते हैं तो वो नॉलेज का समंदर होता है। आप अब अभी मैं बोल रहा हूँ आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बहुत कुछ बोल रहा हूँ, मगर मेंस पेपर में क्या होता है कि व्हाट यू राइट is very important, and that written part should be easily comprehensible to the examiner who's checking on the other side, and that will fetch you the marks. So whatever topic, whatever the issues, that you should be able to write in 150 or 200 or 250 words easily, and that topic should have width, some breadth also, and should include some current issues, and should be dynamically linked with the current issues. So otherwise उससे क्या होता है कि आपको दूसरे कैंडिडेट से एज मिलता है। और पर्सनालिटी टेस्ट भी कुछ नहीं है। पर्सनालिटी टेस्ट में आपको आज एज ए पर्सन वो 20-25 मिनट या 30 मिनट के लिए आपको जाना चाहेंगे, तो आपको वहाँ पर किसी आपकी पर्सनालिटी, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में या आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, आपके आप कहाँ से आए हो उसके बारे में पूछ सकते हैं, करंट अफेयर के बारे में पूछ सकते हैं आपको।
सो आपके प्रोफेशनल बैकग्राउंड या आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको सबसे पहले एक सिविल सर्वेंट को ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, एंड ही शुड स्टैंड टू हिज ग्राउंड। तो वो कभी भी किसी इशू पे आपको प्रोवोक करेंगे तो आपके पास जो ओपिनियन है, आपके पास रीज़न होना चाहिए, और यू शुड स्टैंड योर ग्राउंड। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और आपको कॉन्फिडेंस शो करना है। और वैसे पर्सनालिटी टेस्ट में आप जाओ तो पहले 2-3 मिनट जो चेयरमैन होता है, मेंबर्स होते हैं, वो आपको कंफर्ट फील करवाते हैं। तो उसके बाद आपको एक नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह आप कन्वर्स करना है, और एट द एंड ऑफ द डे फिर भी उसमें उनके साथ एक जजमेंटल होता है, तो मिस्टेक्स हो सकती है। तो पर्सनालिटी टेस्ट भी एक काइंड ऑफ लक होती है, मगर कुछ चीज़ें प्रेडिक्टेबल होती है कि आपको ये करना है तो करना है। तो उस सेंस में आपको अपने आप तैयार। हेलो सर। हाँ, ठीक ठीक आ रहा है नवाज जी, कंटिन्यू कीजिए। तो बस सर, और क्या? हेलो। हाँ बोलिए। इस एग्ज़ाम में एक और क्रिटिकल इम्पॉर्टेंट ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए, और एक आपको सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी रिजल्ट्स अपने हिसाब से नहीं आते हैं, तो आपको जल्दी क्विट करने की टेंडेंसीज हो सकती है। तो आपको याद करना है कि भाई मुझे ये सिविल सर्वेंट क्यों बना। ये तो किसी भी प्रोफेशन के लिए अप्लाई होता है कि मुझे ये काम करना क्यों। अब आपको रीज़न आपको याद आएगा, तो आपको समझ आएगा हाँ भाई ये इसीलिए मैं बनना चाहता था। तो इसलिए आप कंटिन्यूसली मोटिवेट करते हो, क्योंकि ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आप 1 नंबर 2 नंबर से भी ड्रॉप हो सकते हो। आप अपने एक सिली मिस्टेक से आप ड्रॉप हो सकते हो। तो मगर आपको उस पर वर्क करना है, और वर्क करके आपको आगे बढ़ना है। मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे को, आप बताइए, एक ऐसा मेरे साथ ऐसा हुआ था जो एक आम इंडियन एस्पिरेंट्स के साथ नहीं होता है। मुझे प्रीलिम्स में मेरे को जनरल स्टडीज़ में बहुत अच्छे मार्क्स आते, 100-110 के आते थे, मगर मुझे सीसेट पेपर ड्रॉप होता था। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड होने के बावजूद भी मुझे सीसेट ड्रॉप होता था, मगर उसका मेन रीज़न यही होता था कि बस मैं पेपर 2 आफ्टरनून में होता था, तो मैं पैनिक हो जाता था। उस पैनिक होने की वजह से मैं आई कुडंट इवन स्कोर that 20 some 20 66 और मार्क्स। सो मैंने सबसे बड़ा लेसन ये चाहिए कि आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, आपको एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होना चाहिए। और आप एक चीज़ बताइए, 2016 में मैंने मेंस दिया, तो आई कुडंट क्वालिफाई दैट इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर, बट स्टिल मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर भी कंटिन्यू किया अपना प्रिपरेशन। और मैंने डे बाई डे इम्प्रूव करने की कोशिश की। 2018 और 19 में यही फ़र्क हुआ कि मैंने राइटिंग प्रैक्टिस किया। हम जामिया में होते थे, तो हमारे ग्रुप बनता था, और ग्रुप में क्या होते थे, हम राइटिंग प्रैक्टिस करते थे। उसमें सीनियर एस्पिरेंट्स भी होते थे, जूनियर भी होते थे। हम कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, उस प्रैक्टिस करने से क्या होता था, दूसरा बंदा उसको इवेलुएट करता था उधर इंस्टेंट, तो आपको गलती पता चल जाती थी। या अगर एक आंसर होता है, 5 लोग लिखते हैं, तो 5 तरीकों से लिखते हैं, तो आपको उससे पॉइंट्स भी मिलते थे। तो आप उस पॉइंट्स पे मिलने से आपको आपका होराइजन बढ़ जाता था कि भाई इस क्वेश्चन में ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इस तरह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप अगर कहीं भी प्रिपरेशन करो, तो एक ग्रुप बना के पढ़िए, जिससे आप अपने आप को जज कर सको कंटिन्यूसली। जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अगर इसमें एक क्यूमुलेटिव इम्प्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यूमुलेटिव इम्प्रूवमेंट के लिए आपको साथ कोई गाइड होना चाहिए, आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इसलिए जामिया जैसे इंस्टीट्यूट्स को मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पर मुझे एक ऐसा माहौल मिला। मेरे साथ जो आपके अदर सक्सेसफुल कैंडिडेट स्टैंजिन वांगियर, वो भी मेरे साथ वहीं पे जामिया में थे। तो हम सब एक ग्रुप बनाते थे, चाहे प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे मेंस की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे पर्सनालिटी की प्रिपरेशन करनी। तो उससे एक किस्म का डाइवर्स आपको पर्सपेक्टिव मिल जाता है किसी भी इशू में, तो उसका आपका आंसर यूनिक बन जाता था। तो आपकी मिस्टेक्स भी इजीली आइडेंटिफाई हो जाता था, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस आपको कोचिंग में नहीं मिलेगा। आपको कोई टीचर बोलेगा प्राइवेट कमर्शियल कोचिंग के बाद, वो आपको कितना टाइम देगा, मगर आपके फ्रेंड्स आपको टाइम देगा। जी सर, आई एम डन सर। थैंक यू नवाज जी, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत थैंक यू सर। डिटेल में अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। सो कोई मतलब क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क क्वेश्चन, यू कैन रेज योर हैंड।
क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन योदाले सुगत क्वेश्चन। मंजूर। हाँ सर, क्वेश्चन हियर। हाँ बोलो बोलो मंजूर। हाँ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। सेकेंडली सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ जो मेंस में जो राइटिंग होता है मेनली, तो उसको आपने कैसे इम्प्रूव किए थे ओवर द टाइम? थैंक यू मंजूर। यस सर, आई एम डन। जी मैं मेंस के लिए यही बोलता हूँ कि पहले जब 2017 में मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था तो वो राइटिंग प्रैक्टिस करवाते थे, मगर उनका एक आंसर आता, मैं पेपर देता तो वो इवेलुएट हो गया कुछ 1-2 हफ्ते के बाद, तो मैं भूल भी जाता था मैंने लिखा क्या है, तो मैं इंस्टेंट इवेलुएट। तो इसीलिए मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि भाई इसमें आपको एक ग्रुप बनाते थे, तो वो ग्रुप हम 5 बंदे 5 क्वेश्चन लिखते थे विद इन 20-25 मिनट्स हमें लिखना पड़ता था। तो उस 20-25 मिनट्स में फिर उसके बाद हम इवेलुएट करते थे उस अपने आंसर को 5 लोगों में हम सर्कुलेट करते थे। तो वो फिर मिस्टेक्स निकालता था, वो बोलता था आप ऐसे लिखो, लिख सकते थे, इसमें ये पॉइंट ऐड करना, ये तो इससे मेरी स्किल से वो इम्प्रूव हो गई। तो एक आम कैंडिडेट के लिए आप जहाँ कोई ग्रुप नहीं हो तो मैं उसको बोलता हूँ, एक एडवाइस है कि आप शुरुआत से आप ग्रुप ढूंढने नहीं बैठ, ग्रुप नहीं मिलता है तो भी आपको क्या करना है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, उसमें एक एडिटोरियल होता है लेफ्ट साइड में, उस एडिटोरियल में आप क्या कीजिए, उसको पढ़िए 2 बार 3 बार, फिर अपने वर्ड्स में आप उसको 150 और 200 वर्ड्स में आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए और खुद उसको इवेलुएट कीजिए और उसको पिछले वाले जो एडिटोरियल में देख के देखिए मैंने कितने पॉइंट्स मिस किए, मेरे इस इशू में मेरे जो कनेक्शन है कि नहीं, जो इसमें एक किस्म का फ्लो होता है वो है कि नहीं, तो आप धीरे धीरे जज कर सकते हो। तो मगर ये जो होती है इम्प्रूवमेंट, ये क्यूमुलेटिव इम्प्रूवमेंट होती है, बहुत स्टडी होती है, क्योंकि खासकर मैं एडवाइस देता हूँ टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को, क्योंकि उनको आदत होती है कि वो बुलेट पॉइंट्स पे लिखने की आदत होती है और शॉर्ट शॉर्ट लिखने की आदत होती है, तो उनको थोड़ा इशू हो सकता है, और उनको ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न, अंडर ग्रेजुएशन का ऑब्जेक्टिव एग्जाम का पैटर्न होता है, उनको लिखने की आदत है, तो उनको थोड़ा इसमें फोकस करने की जरूरत है। जी थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आई एम हेलो। क्वेश्चन पूछिए क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलिए नवाज जी, बोलिए। हाँ सर, आपने कोचिंग लिया था जामिया मिलिया, जामिया हमदर्द और आई थिंक आपने ज़कात फाउंडेशन से भी, तो उनमें एडमिशन होने के लिए क्या चाहिए, या कोई वो लोग टेस्ट वेस्ट लेता है या ऐसे ही मतलब बच्चे ले लेते हैं? जी, ज़कात फाउंडेशन मैंने वहाँ से कोचिंग नहीं की है, मगर 2018 में मैं जब पीटी क्वालिफाई किया तो वो क्या करते हैं, वो फाइनेंस करते हैं आपकी मेंस के उसको, तभी उन्होंने मेरा नाम लिखा। अदरवाइज ज़कात फाउंडेशन का एक नोटिफिकेशन अभी सर्कुलेट हो रहा है, तो उसमें देखिएगा आपको, उसमें उनका पीटी टाइप का पेपर होता है, वो आपको क्वालिफाई करना होता है, इंटरव्यू भी होता है, तो वो पूरे कोचिंग आपकी फाइनेंस करते हैं। बाकी रहा जामिया मिलिया और जामिया हमदर्द, उसमें भी वही एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम होने के बाद पीटी पैटर्न में एग्ज़ाम होता है, जामिया मिलियन पीटी पैटर्न, फिर उसके बाद एससी लिखना होता है, फिर उसके बाद वो लोग फिर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर वो सिलेक्ट करते हैं, ये एक प्रोसीजर है। दूसरा एडमिशन का एक और तरीका है कि आप यूपीएससी की प्रीलिम्स को ही क्वालिफाई कीजिए तो आपको मेंस में एडमिशन मिलता है, तो वो मेंस में आप मेंस के दौरान एडमिशन मिलता है, तो आपको अगर आपका रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं तो वो लोग आप सबको कंटिन्यू करवाते हैं। तो मैं तो जामिया में एडमिशन मुझे उस दूसरे तरीके से नहीं मिला था, जो ओपन कंपटीशन होता है, मुझे 2018 का पीटी क्वालिफाई करके उस तब मुझे एडमिशन मिला था। जी डॉक्टर नाज, यहाँ पे एक देयर इज वन क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, सो उसमें लिखा है कि प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट द इंटरव्यू करके लिखा है। मेरा इंटरव्यू का, मेरे पास दो साल 2 टाइम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। 2018 में भी मैं इंटरव्यू में अपीयर हुआ था और 2019 में भी हुआ था। सो
सबसे बड़ी एक्सपीरियंस ये होता है कि आप वहाँ पर वो लोग आपको जाते ही 2-3 मिनट आपको पहले बिल्कुल कूल काम करवाते हैं। तो उसके बाद आपको फिर अपने पर्सनल बैकग्राउंड या कुछ के बारे में पूछेंगे। सो आपको फिर वो अपने डैफ आपके बैकग्राउंड को वो रीड आउट करेंगे। उसके बाद आपको चेयरमैन कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद फिर आपको मेंबर्स पूछेंगे। मेरा लास्ट ईयर तो मुझे काफ़ी कम नंबर बिलो एवरेज मार्क्स दिए थे, तो जिसकी वजह से शायद मेरा सिलेक्शन भी रुक गया था। इस साल अभी तो मार्क्स शो नहीं हुए, तो वो एक स्मूथ इंटरव्यू चला था लास्ट ईयर का। तो मगर शायद उन्होंने उसमें मुझे जज कर लिया होगा। तो दोनों टाइम मुझे मेरा वेटनरी फील्ड रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, तो जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। मगर मैं सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा कॉन्फिडेंस और मेरे स्पीकिंग वे में थोड़ा लास्ट ईयर से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी। शायद इस वजह से इस बार मैं इम्प्रूव कर गया। लास्ट ईयर में हालांकि मैं अगर टेक्निकली देखा जाए, क्वेश्चन आंसर्स के हिसाब से देखा, मैंने अच्छे से उनको आंसर किए थे। मगर जब मैं खुद देखा, तो जब मैंने एक्सपीरियंस किया इंटरव्यू के बाद, तो सबसे बड़ी चीज़ थी मेरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। तो मैं सोचता था कि यार ये कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे। तो ये बैक ऑफ द माइंड चलते चलते मेरे को फेशियल एक्सप्रेशंस या मेरे कॉन्फिडेंस में बहुत डेंट हुआ, तो जिससे शायद मुझे मार्क्स कम मिले थे। तो इस साल भी मेरा वही इश्यूज पे यही वेटनरी रिलेटेड, कोरोना, एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड मुझे क्वेश्चन पूछे। तो लद्दाख के भी कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे। सो मेरा यही एक्सपीरियंस है कि भाई ज़्यादा मतलब इंटरव्यू को ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं लेना है। जस्ट इन कन्वर्सेशन, जैसे हम और आप अभी बात कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक ऐसी कन्वर्सेशन होती है जो वो लोग बस क्वेश्चंस बोलते हैं, तो आपको उसमें अपनी पर्सनालिटी शो करनी है, चाहे क्वेश्चन फैक्चुअल हो, चाहे वो ओपिनियन बेस्ड हो। अगर उसमें सबसे बड़ा एक चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको उनको ब्लफ नहीं करना है। यू हैव टू स्ट्रेट अवे से नो सर, सॉरी सर, आई डोंट नो, बिकॉज ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट फॉर एन सिविल सर्वेंट। बिकॉज आप ऑनेस्टली नहीं दिखाओगे तो आप कैसे स्टैंड कर पाओगे अपने आप को। सो और ऊपर से कुछ भी आप कहो तो कॉन्फिडेंस के साथ कहना है। और कोई भी ओपिनियन हो तो उसमें आपको एक डाइवर्स ओपिनियन होना ज़रूरी है। उसमें आपको पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख के उसके बाद फिर अपना रीजन के साथ अपना स्टैंड देना है। जी सर। थैंक यू अले। चैट बॉक्स में और एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। हाउ, इसमें लिखा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर फर्स्ट टाइम विदाउट एनी गाइडेंस। सर ये गाइडेंस के बिना तो मुझे नहीं लगता है। गाइडेंस शायद वो लोग कोचिंग बोल रहे होंगे, तो कोचिंग शायद इस टाइम पे अगर नहीं भी करो तो आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि आप इंटरनेट एक ऐसा सोर्स बन गया है जहाँ पर आपको वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स और वाइड वैरायटी ऑफ क्लासेस मिल जाती हैं। सो वहाँ से वो कर सकते हो। बिना गाइडेंस के शायद मुझे नहीं लगता है पॉसिबल हो सकता है, मगर उसमें आपको काफ़ी टाइम लगेगा। पहले अटेम्प्ट में तो पॉसिबल ही नहीं है। कोचिंग के बिना आप कर सकते हो, क्योंकि आप देख सकते हैं इंटरनेट पेनिट्रिटी आज अक्रॉस इंडिया है और आपको मटेरियल ऑनलाइन सारे मिल जाते हैं। और यूट्यूब में देखिए, पीडीएफ में देखिए, और एक अच्छा सा गाइडेंस हो जो आपको बता सकते हैं आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और मेरे हिसाब से अगर आप पहले एक दो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ के सिलेबस कवर करने के बाद अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को पढ़ोगे और सिलेबस को पढ़ोगे, वो सबसे बेस्ट गाइड है। उससे अपना सबसे बेस्ट आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि उससे आप एग्जामिनर के माइंड को रीड कर सकते हो। अदरवाइज आप इंडियन पॉलिटी पढ़ने बैठो तो आपको वास्ट वो कुछ भी आप पढ़ने बैठ सकते हो, इकोनॉमी में कुछ भी पढ़ने बैठ सकते हो। आपको यूपीएससी के पेपर्स पढ़ के आपको पता करने की पूछने क्या चाहते हैं, या हमसे पूछने क्या चाहते हैं। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और एक अच्छा एक मेंटर होना ज़रूरी है। हेलो सर, आई हैव क्वेश्चन। जी सर, जी फरमाइए। सर मैं क्लास 7 का स्टूडेंट हूँ। जी सर मुझे अपने फ्यूचर में आईएएस करना है, तो मुझे कौन सी एक्टिविटीज करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए?
क्लास 7 तो बहुत जल्दी हो गया, तो मगर आपकी इस एम को, आपकी इसको मैं बहुत सराहता हूँ कि भाई आपने अभी से ठान लिया कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, तो इसको सल्यूट करता हूँ। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा मतलब अपने आप को मतलब अभी से मतलब माइंड में ये प्रेशर नहीं कीजिए मुझे सिविल सर्वेंट बनना है। एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह यू ट्राई टू परफॉर्म एट योर बेस्ट। सो शायद आप बाल्टी आती है आपको, थोड़ी मैं बाल्टी में बोलूँ? Yes, sir. Yes, sir. हसन, क्या ना घर नहीं? Yes, sir. Sir, chicken na. अच्छा, तो 7 8 9 का तो ये अंदेश बच्चा है कि भाई यहाँ एज ए नॉर्मल स्टूडेंट आप आप कोशिश उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप शामिल होने की कोशिश कीजिए और अपने माइंड को रिफ्रेश, आप अपने माइंड को सबसे ज़्यादा मतलब एक्सपोजर देने की कोशिश कीजिए। आप चाहे आप डिबेट कंपटीशन में हो, ऐसे कंपटीशन में हो, और आप कोई गेम पकड़ीजिए, उसी से आप अपना माइंड फ्रेश हो सकता है। और आप अगर अभी तो 7th तो काफ़ी छोटा हो गया, 10th 11th तक आप पहुँचोगे तो आप करंट अफेयर, करंट इश्यूज पे आपको इंटरेस्ट लीजिए, मतलब ज़्यादा उस पर जाइए नहीं, क्योंकि आपको एक ग्रेजुएट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर अटेम्प्टिंग। सो आपको एक करंट इश्यूज पे ज़्यादा फोकस करना ज़रूरी है। सो मगर मैं बोलता हूँ कि आप बस आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, डिबेट्स, राइटिंग प्रैक्टिस, और आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस दीजिए। क्रॉस सोशल वर्क में आप थोड़ा बहुत अपने आप एक्सपीरियंस करा सकते हो। आप एक स्कूल में आप किसी भी काम में इंटरेस्ट ले सकते हो। तो ज़्यादा मतलब अब मैं क्या गाइड कर सकता हूँ 7 में क्या ज़रूरत है, मगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव कीजिए, ज़्यादा मतलब करने की ज़रूरत नहीं। जी Thank you, sir. Thank you. जी। Next, Galaxy J6 hand raised shows ऊपर. You can ask the question. Galaxy J6. आप क्वेश्चन पूछिए। शायद कुछ नेटवर्क इशू है। Hello, sir. Yes, yes. Hello, good evening to all. Sir, I am a student of class 10th and I want to ask that how it becomes your aim, sir. गुड इवनिंग जी। एम तो आप बता सकते हैं कि आपको डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आपका कोई भी एम स्ट्रक्चर हो सकता है। आप अपने एक रोल मॉडल को देख के भी आप अपना एम डिसाइड कर सकते हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आप में कोई सेलिब्रिटी हो, तो उससे आप अपना एम डिसाइड कर सकते हो, या डे टू डे एक्सपीरियंस देख सकते हो, पीपल की सफरिंग देख के आप अपना एम डिसाइड कर सकते हो। तो मेरा एम तो आमतौर पर यही होता है कि मैं सोसाइटी में लोगों को एज फार एज पॉसिबल किसी भी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करूं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं 12th में जब था तो मैं एक MBBS डॉक्टर बनना चाहता था, तो मगर मैं अनफॉर्चुनेटली मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। तो मैं BVSC से ही खुश था, तो मैंने सोचा इसी में ही लोगों, क्योंकि एक आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर ऐसा है जी हमारे कंट्री में जहाँ पर आप अपने डाउन टू अर्थ डाउन टू लोगों को आप सर्व कर सकते हो एट मैक्सिमम। सो मगर फाइनल ईयर में आते आते मुझे पता चल गया कि एक सिविल सर्विसेज भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर आप एट ब्रॉड किसी अपने सोसाइटी को सर्व कर सकते हो, डिफरेंट फील्ड्स में आप सर्व कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पर मैक्सिमम एक ऐसी पोजीशन में पहुँचने जहाँ आप मैक्सिमम चेंजेस ला सकते हो। और एम सिविल सर्विस ये था कि मैं एक किस्म का अपने सोसाइटी में अपने लोगों को इंस्पायर करना चाहता है कि हम इफ वी वर्क हार्ड वी कैन ड्रीम बिग। क्योंकि हमारे यहाँ का लद्दाख में ये एक शोशा बनाया हुआ इस एग्ज़ाम का कि भाई ये बहुत टफ एग्ज़ाम है, ये तो हम ये एक इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम का एक रीज़न था कि मैं क्रैक करके दिखाना चाहता था। एक एवरेज बैकग्राउंड से, एवरेज स्कूलिंग से आके बंदा इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। जी Okay, sir. Thank you so much, sir. थैंक यू। हेलो Next. सर। Yes, yes. हाँ, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑप्शनल क्या था और क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज का होता है ना, वो उर्दू था, हिंदी था या दूसरा था?
अब ऑप्शनल अगर पढ़ना होगा तो कब से पढ़ना शुरू करना चाहिए, पीटी से पहले, पीटी के बाद? जी, मेरा ऑप्शनल तो वेटनरी साइंस था, तो मैं एक वेटनरी ग्रेजुएट था, तो मैंने ऑटोमेटिकली यही चूज़ किया। और एक रीज़न ये था कि एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैं एक है बोलते कि टेक्निकल सब्जेक्ट में स्कोरिंग करना थोड़ा इजी है, मार्क्स में रिलेटेड उसमें थोड़ी लैक्सिटी होती है। सो ऑप्शनल पढ़ना ना पढ़ना, तो मेरा ये ऑप्शन होता है कि आप कब बेटर रहता है कि आप प्रीलिम्स से पहले, क्योंकि आप प्रीलिम्स से पहले 1 साल से या 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, तो पहले ही प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप उसमें राइटिंग प्रैक्टिस, नोट्स, ये सब करके आप उसको प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि पीटी के बाद जब आपके पास 100 डेज होते हैं, तो आपको प्रिपरेशन करना मतलब नामुमकिन को नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा टफ होता है, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है। तो आपको उस टाइम आपको क्या करना चाहिए, आपको ऑप्शनल को रिवाइज या थोड़ा एडिशन कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा एडवाइस है कि आप पीटी से पहले या पीटी से 2-3 महीने पहले ऑप्शनल आपके पास रेडी होना चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट में, क्योंकि जनरल स्टडीज एक ऐसा पोर्शन है जो डायनेमिक होता है, जो चेंज होते रहता है। तो आप उसमें आप प्रिपेयर करो तो आपको और नया मटेरियल आएगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स आते हैं और न्यूज़ में और इश्यूज आते हैं, तो वो आपको कंटिन्यू प्रिपेयर करते हैं। तो ऑप्शनल एक वो स्टैटिक ही होता है, तो आपने वंस प्रिपेयर किया तो आपको रिवाइज करना होता है। तो पीटी से पहले पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि आपको उस पीटी के बाद जो टाइम होता है, आपको खाली ऑप्शन रिवाइज करना हो, तो आप उससे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। क्योंकि ये देखा गया है हमारे आमतौर पर एस्पिरेंट्स में कि किसी भी बंदे को अगर सिलेक्शन या रैंक अच्छी लानी है, तो ऑप्शनल, एसए सब्जेक्ट और इथिक्स में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। और आप देखिए टॉपर्स में, देखिए जो ऑप्शनल में उनका एवरेज स्टूडेंट से 20 to 25 मार्क्स उनका ऊपर होता है। तो मैं एडवाइस करता हूँ कि पहले प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट है, पीटी से 2-3 महीने पहले, पीटी के दौरान मतलब 1 महीने 2-3 महीने पहले प्रिपेयर कीजिए। जी, इसका एक और पार्ट भी था शायद इस क्वेश्चन का, मैं भूल गया, एक कब प्रिपेयर करना है और मेरा ऑप्शन का तीसरा कुछ भी उन्होंने शायद ऐड किया था। लैंग्वेज पेपर से रिलेटेड सर, हाँ, सॉरी आपका लैंग्वेज पेपर मेरा था। लैंग्वेज पेपर तो मेरा पहला इंग्लिश होता है, वो कंपलसरी होता है। तो मेरा लैंग्वेज पेपर उर्दू था जी, उर्दू, क्योंकि मेरी स्कूलिंग 10 तक उर्दू में हुई, तो इसीलिए मैंने उर्दू चुना। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। Yeah, next नवीन, यस सर। बोलिए। सर ये डॉक्टर नवाज से पूछना था कि ये जो कन्वेंशनल वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस जो है, जो एनसीईआरटीज पढ़ना, ये सब जो है, क्या ये मस्ट टू डू थिंग है, और ये स्किप करके हम आगे जो फर्दर जो बुक्स होते हैं ग्रेजुएशन लेवल के, क्या हम वहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हैं कि एनसीईआरटीज पढ़ना मतलब ज़रूरी है? जी, एनसीईआरटीज़ पे मैं इसलिए फोकस देता हूँ क्योंकि ये एक जैसे आप, मैं वेटनरी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड ही नहीं है पॉलिटिकल, मुझे पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, तो मैंने स्कूलिंग में पढ़ी होगी मगर किसको याद रहता है वो। तो इसीलिए मुझे 6 से या 8 से 9 से पढ़ूँ तो मुझे एक किस्म का रिफ्रेश हो जाता है, तो जिससे मेरी बेसिक्स, तो अगर आप हायर ग्रेजुएशन के बुक्स पढ़ोगे तो आपको बिना बेसिक्स, तो वो आपका एक खोखला सा प्रिपरेशन हो जाएगा, क्योंकि आपको एक प्रोग्रेसिव प्रिपरेशन ज़रूरी है, आप एक स्टेप बाय स्टेप वाइज। और दूसरा, एनसीईआरटीज़ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, एक एनसीईआरटी कॉमन रिसोर्स है ऑल ओवर इंडिया में, रूरल बैकग्राउंड का आदमी हो, अर्बन बैकग्राउंड का आदमी हो, और ये सबके पास अवेलेबल होता है, तो जिससे इसीलिए यूपीएससी प्रेफर करती है कि इससे क्वेश्चन पूछते, ताकि एक किस्म का लेवल फील्ड मिल जाए सारे एस्पिरेंट्स को, चाहे रूरल हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, तो उससे नहीं। अदरवाइज आप ग्रेजुएशन पढ़ के आप अगर बड़े से बड़े कंसेप्ट्स को पढ़ना चाहोगे, तो मगर आप यूपीएससी में देखिए तो उनके क्वेश्चंस यहीं किन्हीं बुक्स में कहीं ना कहीं कॉर्नर से आते हैं, तो एनसीईआरटी बहुत क्रिटिकल होता है। जी, नहीं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट दो ने हैंड रेज किया है।
Okay, Dr. Nawaz, we can take one. ये चार्ट में एक क्वेश्चन है. जी सर. चार्ट का क्या लिखा है इसमें? इसमें एक क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनालिटिकल एंड डायनेमिक क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी. क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि पेपर 2 और 3 में मैं बोलता हूँ एनालिटिक और डायनेमिक क्वेश्चंस आते रहते हैं क्योंकि ये इसमें फ्लूइडिटी बहुत पॉलिटी का होता है, इकोनॉमी का, साइंस एंड टेक का. तो इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी एस्पिरेंट्स का होता है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, आपको एक डाइवर्स ओपिनियन मिलता है. डाइवर्स एडिटोरियल होते हैं, उसमें एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड के, तो वो आपको डिफरेंट ओपिनियन देंगे, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देंगे. तो उससे आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो. और दूसरा है कि आप टीवी डिबेट्स, जैसे राज्यसभा टीवी डिबेट होता है, वो बिग पिक्चर एक प्रोग्राम होता है, वो उस इशू में कम्प्रहेंसिवली आधे घंटे में एक्सपर्ट्स आते हैं. इस जो बड़े बड़े जैसे एक्सपर्ट्स एकेडमिक बैकग्राउंड के आते हैं, सिविल सर्वेंट्स आते हैं जिन्होंने इस फील्ड में काम किया होता है, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना वो नॉलेज शेयर करते हैं. तो उससे भी आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा और एक आपके डायनेमिज्म मिलेगा. और एक आप तरीका ये तीसरा होता है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के 5-6 एस्पिरेंट्स बैठिए, तो आप उस इश्यू को डिस्कस कर सकते हो क्योंकि उन्होंने अलग अलग सोर्सेस से पढ़ा होगा, तो अलग अलग ओपिनियन होगा, तो उसमें आप एक किस्म की डायनेमिज्म आपके आंसर्स में आएगी और आपको उस इश्यू के बारे में अवेयरनेस होगी. और इसमें आप देखिए तो आपको अवेयरनेस है मगर इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है. तो मैंने पहले भी जिक्र किया है कि आप ग्रुप राइटिंग कीजिए. तो आपने अगर कोई ओपिनियन लिखा है तो उसको सप्लीमेंट करने के दूसरा ओपिनियन भी हो सकता है, कोई फैक्ट हो सकता है जो आपका फ्रेंड आपके साथ शेयर करे, या इसी इश्यू का दूसरा एक पहलू भी होता है, तो उसको आपका फ्रेंड कैसे प्रेजेंट करता है वो भी आपको मिलता है. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है. मगर एक आम स्टूडेंट के लिए अगर आपको ग्रुप स्टडी में तो न्यूज़पेपर और टीवी डिबेट्स, स्पेशली राज्यसभा टीवी डिबेट्स आप पढ़िए, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको एनालिटिकल और डायनेमिक क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर साहब. और एक ये और एक क्वेश्चन है इसमें, RMX करके उसमें लिखा है कि उसने लिखा है कि प्लीज टेल मी इन ब्रीफ अबाउट जामिया रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस, फी एटसेट्रा, एवरीथिंग अबाउट RCA. जी सर. तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि RCA में एडमिशन का दो तरीके होते हैं. एक इधर उनका एक प्रीलिम्स पैटर्न में एक टेस्ट होता है और उसमें दूसरा आपका होता है एक एसए पेपर होता है. प्रीलिम्स पैटर्न टेस्ट में यूपीएससी के प्रीलिम्स वहीं से पेपर होता है, वहाँ पर थोड़े बहुत एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस होते हैं, उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है. और आपका एसए होता है करंट इश्यूज पे होता है, जो आपके सोसाइटी से पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन का होता है. और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उनकी एक लिस्ट निकलती है, उसके बाद वहाँ पर वो इंटरव्यू होते हैं. इंटरव्यू में भी यहीं आपके डायरेक्टर सर जो एक IAS ऑफिसर होते हैं रिटायर्ड, और 2-3 एकेडमिशियन बैठ के आप इंटरव्यू लेते हैं. फिर उसके बाद उनकी लिस्ट बनती है. ये एक प्रोसीजर. दूसरा प्रोसीजर ये है कि जैसे वो मैं उसके थ्रू आता, आपको PT क्वालिफाई करना है, तो मेंस में वो आउटसाइडर कुछ 30-40 बच्चे लेते हैं, तो आप वहाँ मेंस के दौरान आप वहाँ प्रिपेयर करने जा सकते हो. तो फिर आपकी परफॉर्मेंस, जैसे आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर चुके या मेंस में बहुत कम मार्क्स से कम मार्क्स से इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं किए, तो आपको वो कंटिन्यू करवा देते हैं. तो सिलेबस में लिखा है इन्होंने, तो वो यूपीएससी का ही सिलेबस होता है बस. और फीस में उनका ज़्यादा फीस नहीं होता है. उनके कुछ बाउंड होता है कुछ 5-6 हज़ार रुपये का, और बाकी वो लोग मेस की हॉस्टल फीस लेते हैं. तो RCA का एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि मैं बता सकता हूँ, हमारे इंडिया के SC STs माइनॉरिटीज़ वुमेन के एक किस्म का बेस्ट सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं. और वहाँ पर आप देख सकते हैं एक फ्रेश से फ्रेश कैंडिडेट भी आता है, जिसने 3 से 4 मेंस दिए वो भी होता है, जिसने 2-3 इंटरव्यू दिए वो भी होता है, जिसका ऑलरेडी सर्विस में हो, IPS हो, IRS हो, या बाकी सर्विस जो रैंक इंप्रूव करना चाहते तो वैसे भी स्टूडेंट. तो आपको डाइवर्स एक्सपीरियंस के बंदे मिलेंगे, तो जिससे आप कंटिन्यूली अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो. और आपको डिफरेंट बैकग्राउंड, आप डिफरेंट रिलीजन से बच्चे आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड इन द सेंस ऑफ इनकम.
गरीब भी का बच्चा भी आता है, अमीर भी आता है, तो उससे आपको एक चीज़ होता है कि आपको मतलब ये फील होता है कि यार मेरे से भी किसी के बैकग्राउंड, मेरे से भी खराब बैकग्राउंड से भी बच्चा आता है और मगर वो यहाँ पर एक एस्पिरेशन लेकर आता है कि मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूँ, तो वो भी आपके एक मोटिवेशन होता है। मैंने एक आप बताऊँ कि मदरसा स्कूल ऑफ एजुकेशन से भी बच्चे वहाँ पर हम आते हैं, रिलीजियस स्कूल से भी बच्चे आते हैं जो एस्पिरेशन लेके आते हैं कि हम सिविल सर्विस, तो उससे आप कंटिन्यूसली मोटिवेट होते हैं। और वहाँ पर बस यही सिविल सर्विस रिलेटेड किस्म की माहौल होती है जिससे आप कंटिन्यूसली आप अपने आप को एक्सपोज रखते हो, तो और कोई आउटसाइड डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आपको गाइडेंस करने के लिए आपके पास सीनियर एस्पिरेंट्स होते हैं, ऑलरेडी सिलेक्टेड बंदे होते हैं, तो ये बहुत इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता है कहीं पे ये माहौल मिलता होगा। जी सर। Okay, thank you. Okay, next, any questions, please? You have the question, so the question is the question. Yeah, you can ask. For Dr. Nawaz. जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर आप हेलो जी जी। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि एग्जाम से पहले आप रिवीजन कैसे करोगे? तो ही एग्जाम्स करीब होते हैं, हम नोट्स बनाते हैं, हम कंपाइल करते हैं डिफरेंट नोट्स, तो उस टाइम पे जब एग्जाम बहुत नजदीक होते हैं उस टाइम पे आप कैसे अपना एक स्ट्रेटजी बनाते हो एग्जाम क्रैक करने का? और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप कुछ ऐसे वेबसाइट्स रिकमेंड कर सकते हो जो विदाउट कोचिंग हम वहां से जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं? जी जी जी। तो रिवीजन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका मटेरियल डिसाइड करता है। अगर आपके पास बल्कि मटेरियल होगा तो उसको रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। आपके पास शॉर्ट मटेरियल होगा तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो। आज के टाइम पे तो ई नोट्स बनाते हैं, गूगल पे बनाते हैं, दूसरे उस पर भी ई प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको ईजी होते हैं रिवाइज करने के लिए और कम टाइम होते हैं। तो रिवीजन आपने पहले अगर अच्छे से मटेरियल तैयार किया और कम्प्रेहेंसिव हो तो वो रिवाइज करना, तो इसीलिए कम से कम मटेरियल रख के आप उसको रिवीजन करने में इजी होती है। तो ज़्यादा रिवीजन करते हुए ज़्यादा सोचना भी नहीं कि मेरे को ये रिवाइज क्यों नहीं होता है। बैक ऑफ द माइंड आपको ये नॉलेज होती है तो उसको आप इजीली उसको एग्जाम में आपको याद आता है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट वो है कि आपके पास कम से कम मटेरियल हो, कंपाइल्ड मटेरियल हो, वो क्रिटिकल होता है। बाकी वेबसाइट्स में मैं बोल सकता हूँ बिना कोचिंग के आप जैसे insights.is.com करके एक वेबसाइट होता है, वहाँ से आप वो कर सकते हो। IS बाबा भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। और अन अकेडमी होता है, पहले तो फ्री होता था, अभी शायद फाइनेंस किया, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हो ऑनलाइन। ये तीन जहाँ तक मुझे पता है वो जहाँ से आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। जी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Next question with the sugar. Next. Yeah. Next में नहीं करनी yang online yang chat box से में एक question है. How to keep the motivation always up? Huge syllabus often tends to demoralize sometimes. Ups and downs. The most difficult task of UPSC. Motivation, consistency. How to achieve that करके एक question है. जी जी सर, मोटिवेशन बहुत क्रिटिकल होता है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि आप आमतौर पर देख सकते हो कि रिजल्ट्स आपके हिसाब से नहीं आते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू है टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड व्हाई यू हैव चोजन दिस पाथ, व्हाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। बिकॉज आप अगर जल्दी हार मान जाओगे, आप रीज़न भूल जाओगे, तो आप जल्दी हार मान जाओगे। तो यू हैव टू कीप मोटिवेटेड। और दूसरा पॉइंट ये है कि दोज पीपल हु सपोर्ट यू, those people who support you like your families and friends, उनको आप उनके साथ अपनी, प्लीज साउंड आ रहा है कहीं से सर, किस म्यूट कीजिए, किसी ने म्यूट नहीं किया, डिस्टर्बेंस। हेलो
तो मोटिवेशन के लिए यही मैंने बोला कि आपको रीज़न होना चाहिए आप एग्ज़ाम ये क्यों दे रहे हो, और उसके बाद आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिली से जो आपको सपोर्ट करते हैं उनसे आप कभी भी कन्वर्सेशन कर सकते हो कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो वो आपको ज़रूर मोटिवेट करते हैं। तो मेरे केस में जब रिजल्ट अपने हिसाब से नहीं आता तो मैं सबसे ज़्यादा मैं अपने ब्रदर्स को कंसल्ट करता था, तो वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे कि आप करना, और फ्रेंड्स भी आपको वो मुझे मोटिवेट करते थे। और आप देख सकते हैं कि भाई आप प्रीवियस जो एस्पिरेंट्स सीनियर एस्पिरेंट्स होते उनसे भी आप कंसल्टेशन कर सकते हो कि आप मोटिवेट कैसे करते हो। आप जैसे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स की स्टोरीज पढ़ सकते हो जहाँ पर उन्होंने अपने आप को डिस्पाइट ऑल डिफिकल्ट चैलेंजेस, जैसे अपने बैकग्राउंड रिलेटेड, रिजल्ट्स रिलेटेड, कोई भी पर्सनल इशू रिलेटेड होने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप को मोटिवेट किया, तो उनकी स्टोरीज पढ़ के भी आप मोटिवेट हो सकते हो। जी सर। और एक क्वेश्चन है, इस जुल्फिकर ने लिखा है कि व्हाट क्वालिटीज शुड एन आईएएस ऑफिसर हैव? सो मुझे क्वालिटीज ऑफ बीइंग एन आईएएस ऑफिसर। सर क्वालिटीज आई थिंक आईएएस ऑफिसर का क्वालिटीज एक कॉमन मैन को जो होनी चाहिए वो एक आईएएस ऑफिसर को भी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ही शुड हैव द ऑनेस्टी, बिकॉज एक सिविल सर्वेंट ऑनेस्ट है, क्योंकि बिकॉज ही शुड सीन इज एज एन आइडल अमंग आवर सोसाइटी। तो आप जितना आप ऑनेस्टली होगा तो आपको पीपल फॉलो करेंगे। और एक चीज़ होता है कि आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए सिविल सर्विस या सोसाइटी को सर्व करने का, तो जिससे आप मैक्सिमम पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हो। और एक सिविल सर्वेंट को आप एक लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। लीडरशिप क्वालिटीज इससे बोल रहा हूँ कि आपको अपने सराउंडिंग, अपने इन्वायरमेंट में डिफरेंट बैकग्राउंड के पीपल होते हैं, डिफरेंट स्टेटा के सोसाइटी के लोग होते हैं, उनको अपने साथ लेके चलने की आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए। और आपको जब भी रिजल्ट मैन ऑफ क्राइसिस भी बोल सकते हैं ऐसा, तो आप जब आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं चलती है तो उस वक्त आपको पेशेंस शो करनी है कि भाई इसमें रिजल्ट्स आपको बाद में भी आएंगे, या आपके पास एक सिविल सर्वेंट एक विजनरी होना चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी जगह डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, कोई पॉलिसी बना रहे हो, तो मे भी उसके रिजल्ट्स आपको इमीडिएटली नहीं आते होंगे। तो आपको क्या होना, आपका विजन होना चाहिए कि भाई मैंने जो पॉलिसी बनाई, मैं जो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इसका रिजल्ट्स आफ्टर 5 years 10 years आ रहे हैं। तो आप यू शुड विजुअलाइज हाउ इट विल लुक इस पॉलिसी और इस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से। तो यही मैं बोलता हूँ एक आईएएस ऑफिसर के पास, एक सिविल सर्वेंट के पास क्वालिटीज होनी चाहिए। Thank you, Dr. Sir. Any question, please? Question, Tizen. हेलो सर। जी हेलो। हेलो सर। जी सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है सर, मतलब आईएएस के लिए, आईएएस प्रिपरेशन के लिए कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है? कोई कहता है कि आर्ट्स पढ़ो, आर्ट्स अच्छा है, कोई कहता है कि कुछ और। तो अब बोल सकते हैं सर कौन सा स्ट्रीम बेस्ट है? जी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सेलेक्टिव स्ट्रीम सिलेक्शन के टाइम आपको पास सेलेक्टिव होना ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि आप ये आर्ट्स, ये एक ऐसा वो बनाया हो कि आर्ट्स, आप अगर आप यूपीएससी की सिलेक्शन लिस्ट निकालोगे पिछले 3-4 साल में, आप देख सकते हो मैक्सिमम सिलेक्शन टेक्निकल बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, और उन्होंने आर्ट्स के ही ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट लिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप ग्रेजुएशन में ही आप डिसाइड नहीं कीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट इसलिए लेना है कि मुझे एक आईएएस अफसर बनना है। कुछ का हो सकता है आपके पास दूसरे एक रीजन में होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट क्यों लेना है। आप इंजीनियरिंग होगा या आप वेटनरी साइंस एमबीबीएस होगा, तो आपके पास कैरियर के दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे, तो उससे आप वो भी एक फैक्टर होना चाहिए डिसाइड करने के लिए। पर्टिकुलर होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं इंजीनियर्स वो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ के वो आराम से यूपीएससी को क्रैक करते हैं और इवन टॉप कर जाते हैं। तो ये एक कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है कि ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन के बाद आपके पास एक विल पावर होना चाहिए पढ़ने का, सिटिंग आवर्स आपके इम्प्रूव ज़्यादा, आपके पास मतलब कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पढ़ने की, तो आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।
Yeah, next question. और जी सर इसमें एक एक, क्वेश्चन हाँ बोले बोले। जी जैसे वो क्वेश्चन में वही पढ़ रहा था, वो डीटी ने क्वेश्चन पूछा है सर। हाँ हाँ हाँ। तो इनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब चाहे पहले भी मैंने यही जवाब रहेगा, कोई भी बैकग्राउंड वो मैटर नहीं करता है। आपके ग्रेजुएशन के बाद आपने डिसाइड कर लिया सिविल सर्विस बनना है तो बनना है। तो हमारा वेटनरी बैकग्राउंड को तो मैं तो थोड़ा इजी भी समझता हूँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शनल होता है जो आपने 5 साल से पढ़ा होता है, तो वो ऑप्शनल आपको एक एडवांटेज देती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को क्या होता है, वो उन्होंने अंडर ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में किया होता है और ऑप्शनल को दूसरा होता है, तो उनको एटलीस्ट 1.5 ईयर लगता है एक ऑप्शनल को टेम करने में। अगर आप वेटनरी बैकग्राउंड का, तो मैंने ऑप्शनल कभी इतना सीरियसली लिया ही नहीं, क्योंकि मैं बस यही मेंस के 2-3 महीने पढ़ता था और अपने यूजी के नोट्स या अपने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ता था। मुझे लगता है कि एक वेटनरी बैकग्राउंड स्टूडेंट को ईजी बन जाता है। और कुछ वेटनरी स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड में ऐसे होता है, तो उनको साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स, जियोग्राफी, वो इन सब्जेक्ट्स में उनको थोड़ा इजी होता है, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है। और पेपर 2 सीसेट का, उसमें भी टेक्निकल चीज़ें होती है, तो एक वेटनरी स्टूडेंट टेक्निकल स्टूडेंट ही होता है, तो उनको ईजी होता है। तो डिफ़िकल्टी कुछ भी नहीं है, चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मदरसा स्कूल एजुकेशन, स्कूल ऑफ एजुकेशन या मदरसा ग्रेजुएट्स बच्चों ने भी जामिया में हुआ करते, तो उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। जी सर। हाँ, ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन है, आप देखिए। एक लिखा है कि सर व्हाट सर इज द लेवल ऑफ मैथमेटिक्स इन सी सेट पार्ट करके। जी सर, मैथमेटिक्स का तो वहाँ पर वो 10th क्लास लेवल तक का लेवल होता है। क्लास 10th के एक स्टूडेंट को जो एक्सपेक्टेड होता है कि वही होता है, क्योंकि 10th के बाद बंदे मैथमेटिक्स कंटिन्यू नहीं करते हैं, तो उन बच्चों को मद्देनज़र रखे, उनको कंसिडर करते हुए वो 10th लेवल की मैथमेटिक्स होती है। तो बस वही 10th लेवल की। जी Sir, I have a question for Dr. Nawaz Sharif. जी जी So my question is how to improve writing skills and क्या एक हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को कितना फायदा मिलता है इस सिलेबस से, वो कैसे डिफरेंट टाइम मैनेज करेगा डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में, जनरल स्टडीज के से डिफरेंट पेपर्स हैं, तो वो कैसे राइटिंग स्किल्स को साथ में इम्प्रूव करना भी चाहता है और टाइम मैनेज भी करना चाहता है, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस वेरी करते हैं अलग अलग पेपर से। प्रैक्टिस में तो आपको बस एक राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो कि आपको पहले मैं बोलता हूँ कि इम्प्रूवमेंट आपको करनी है। स्टार्ट आप एक न्यूज़पेपर के किसी इश्यू से हेलो हेलो जी सर, सर आई एम ऑडिबल? प्लीज कंटिन्यू। तो मैं बोलता हूँ राइटिंग प्रैक्टिस के आप न्यूज़पेपर से किसी पैराग्राफ को चुनिए, उसको 2-3 बार पढ़िए, फिर आप उसको अपने वर्ड्स में लिखिए और खुद इवेलुएट कीजिए, क्योंकि इंसान अपने उसका सबसे बड़ा इवेलुएट कर सकते हैं। और आप इस अपने फ्रेंड्स के साथ या आप अपने किसी सीनियर एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करके वहाँ पर आप अपनी गलती आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे जामिया में मैंने पहले भी जिक्र किया कि हम 5-6 लड़के बैठते थे, तो इवेलुएशन बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि आप अगर लिखते रहोगे तो अपने ख्यालों में घूमते रहोगे, तो अपने से इवेलुएट करोगे तो आप इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो आपको दूसरे किसी के साथ आपको शेयर करके उसमें आपको राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करनी है। और राइटिंग में आप ये किसी भी क्वेश्चन में आपको देखना है तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम विड्थ और डायनेमिज्म देनी है, क्योंकि आप एक पॉइंट को आप पूरी तरह अगर आप डिफाइन करोगे तो 30-40 वर्ड्स में डिफाइन करोगे तो आपको 4 या 5 पॉइंट्स आ जाते हैं। मगर आपने ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप करनी है कि आपको 150 वर्ड्स में आपको कम से कम 7 या 8 पॉइंट्स आप इंक्लूड करके उसको समराइज करने की आपके पास वो होनी चाहिए। बाकी रहा हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट को तो थोड़ा एडवांटेज होता ही है, तो वो हर किसी सब्जेक्ट में क्लेम कर सकता है।
आप पेपर 1 में जनरल स्टडीज में देखिए, सीसेट में प्रीलिम्स में, तो उसमें हिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, 8 से 10 या 10 से 12 भी क्वेश्चन आते हैं। और जीएस में भी आप देखिए हिस्ट्री के उसको एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वो हिस्ट्री मिला के कुछ 7-8 क्वेश्चन आते हैं, और उनको आप इंटरनेशनल रिलेशंस में भी उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि हिस्ट्री का लिंक इंटरनेशनल रिलेशन से होता है। बाकी रहा आपको मैं बता सकता हूँ टाइम मैनेजमेंट मेरे हिसाब से आप अकॉर्डिंग टू आप पिछले 3-4 साल के पेपर्स लीजिए और किस पोर्शन से कितने मार्क्स आते हैं, उसी हिसाब से आप किसी भी पोर्शन को टाइम दीजिए, तो उस हिसाब से। अदरवाइज आप एक्सेसिवली आप हिस्ट्री के बैकग्राउंड के स्टूडेंट या आप इकोनॉमी को होंगे तो उसमें एक्सेसिव टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कंसिस्टेंटली 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के, उस हिसाब से आप प्रोपोर्शनली टाइम डिवाइड कीजिए, उस हिसाब से आप टाइम मैनेज कीजिए। और मगर आप जब भी पढ़ रहे हो, जब भी वो करते हो, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना कंटिन्यूस ज़रूरी है जी। Yes, sir, I have a question. Sir, जैसे कि हम अगर आंसर्स लिख रहे हैं, if you are criticizing government, you know how to manage your own biasness, या कोई आप जब गवर्नमेंट की पॉलिसी के रिलेटेड कैसे आप कमेंट्स करते हो? If you are not comfortable to answer that, you know, question, क्या हम लिख सकते हैं गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ, जैसे कि कोई क्रिटिकली हम लिख सकते हैं आंसर की, या फिर सपोर्ट में ही लिखना है उस पॉलिसी के? नहीं, ज़रूरी नहीं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट द क्वेश्चन डिमांड्स। अगर आप क्रिटिकली एनालाइज वो, तो वहाँ कीवर्ड्स होते हैं, क्रिटिकली एनालाइज होता है या कुछ और वर्ड होता है, उस हिसाब से आप आंसर करना होता है। तो मगर ये भी क्रिटिकल एनालाइज के मतलब नहीं कि आप नेगेटिव पॉइंट्स ही मेंशन करोगे, उस स्कीम के बारे में आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी स्कीम मेंशन करने हैं। तो मगर आप अगर क्रिटिक्स कर रहे हो तो विद रीजन क्रिटिक्स आपको करना है, तो जो आपको एग्जामिनर है वो समझ आए कि आप ये ऐसे फेंक नहीं रहे। तो उसके बाद अगर कोई रीजन होगा कि भाई आप अगर आप क्रिटिसाइज करो किसी भी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में, आप बोलोगे कि वे सक्सेसफुल नहीं हो गया, मगर सक्सेसफुल नहीं हो गया तो आप ऐसे नहीं फेंक सकते। आपको कोई डाटा, कोई भी किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट का या किसी उसका उसमें डाटा आपको कोट करना है और ब्रैकेट में उस डाटा को मेंशन करना है, तो उससे आपका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ऑथेंटिक बन जाएगा। तो किसी भी उसमें आपको क्रिटिसाइज, आप उसको पॉलिटिसाइज करके क्रिटिसाइज नहीं करना, बाकी इशू को इशू बेसिस पर आप क्रिटिसाइज करोगे विदाउट टारगेटिंग एनी पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर गवर्नमेंट, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप क्रिटिसाइज करोगे विद लॉजिकल आर्गुमेंट, विद एविडेंस और विद फैक्ट। जी सर। नेक्स्ट और हेलो इसमें सर, मेरा एक और हाँ बोले नवाज। मेरा एक और क्वेश्चन है, आपने सी सेट में कैसे इम्प्रूव किया मार्क्स बढ़ाने के लिए? जो आपने बोला पहले आपकी कोई एग्जाम में आप सी सेट में मतलब रह गए थे कुछ मार्क्स से, तो किस तरह जी, तो सीसेट में सबसे बड़ा तो मेरी एक वो वीक पॉइंट तो नहीं था, मैं एग्जाम में पैनिक होता था, जाते मैं उसमें पैनिक हो जाता, या मैं पेपर 1 अगर मैं करके आता तो उसके बारे में सोचता था पेपर 2 में, तो उसमें मेरा टाइम मैनेज। फिर भी मैंने क्या किया कि मेरा तो बैकग्राउंड मैथमेटिक्स का होल थोड़ा ठीक है, तो मैंने उसको इम्प्रूव करने के मैं क्या करता, मैं टाइम मैनेज करने की कोशिश करता था। तो फिर मैंने किसी जैसे कोई चैप्टर होगा उसको आप पेपर उठाइए, पोर्शन वाइज उसको सॉल्व कीजिए, उसमें देखिए कि किस पोर्शन में आपकी वीकनेस है, किस पोर्शन में आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को क्रिएट कीजिए और आपके वीक एप्टीट्यूड हो जाए, आपकी रीजनिंग होगा, लॉजिकल होगा, कंक्लूजन होगा, तो उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए और उस पर आप किसी स्टैंडर्ड बुक से आके प्रैक्टिस कीजिए, और पहले प्रैक्टिस करके उसको आप होल्ड कीजिए, उसमें होल्ड बनाइए। उसके बाद आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मार्केट में अवेलेबल है वो पेपर्स लाके आप विद इन स्टिपुलेटेड टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए और पेपर्स फिनिश करने की कोशिश कीजिए। तो मैंने कंसिस्टेंटली मैं क्या कर रहा था, पीटी से पहले 1 या 2 महीने पहले मैं यही पेपर के
मैं पेपर्स प्रैक्टिस पेपर में प्रैक्टिस करता था और कोशिश करता था मैं 55 क्वेश्चन अटेंड करूं, तो नेगेटिव आके यही मेरे अराउंड 30-40 क्वेश्चंस मेरे सही हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है और अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर। Next. नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है, किसी को क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चंस क्वालिफाई हो गया था सर। हेलो सर, आई हैड अ क्वेश्चन सर। या प्लीज सर जो सर आई हैव अ क्वेश्चन सर, जो हम प्रीलिम्स और मेंस की जब तैयारी कर रहे हैं तो हमें साइमल्टेनियस नहीं करना चाहिए कि हम अलग से उसको मतलब बाद में अलग अलग टाइम स्लॉट्स में कर सकते हैं? जी, तो प्रीलिम्स का और मेंस का अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स जो मेंस का एक छोटा किस्म का माइक्रोजोम है, तो आप अलग अलग करके तैयारी नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में हिस्ट्री है, हिस्ट्री वहाँ भी है, यहाँ भी है, पॉलिटी यहाँ भी है, वहाँ भी, इकोनॉमिक्स वहाँ भी, यहाँ भी, तो आपको साइमल्टेनियस तैयार करना होता है। और आप देख सकते हैं पीटी में पेपर आप देखिए वो काफ़ी डायनेमिक आते हैं, वो करंट रिलेटेड आते हैं और थोड़ा बहुत उसमें सब्जेक्टिव असेसमेंट भी हो रही है पिछले 2 साल के पेपर, तो आपको साथ साथ में जिनका मेंस में होल्ड था उनको लास्ट 2 सालों में 18-19 में उनके प्रीलिम्स में उनको एडवांटेज मिल रहा है, तो आपको साथ साथ में प्रिपेयर करना है। क्योंकि आप अगर भी पॉलिटी के पर इस इशू में कोई फैक्ट पता हो तो पीटी में काम आएगा और ओपिनियन आएगा, वो आपको मेंस में काम आएगा, तो आपको साइमल्टेनियस तैयारी करनी। बस आप लास्ट में पीटी से कुछ 2 महीने 1.5 महीने पहले आपको पीटी के लिए स्पेसिफिक आपको अलग से तैयारी करनी और उसमें आपको कुछ टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। तो मेरे हिसाब से तो आपको साथ साथ में तैयारी करनी, बस एग्जाम से कुछ 1.5-2 महीने पहले आपको पीटी को अलग से तैयारी करनी होती है। जी सर। हाँ जी सर। नेक्स्ट anybody has a question please? ये और एक क्वेश्चन आ रहा था, ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में आप कुछ जी, टाइम मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि आपकी अदर प्रायोरिटीज क्या है। अगर आप सोली आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ऑन एन एवरेज आपको दिन में 10 से 12 घंटा आप आराम से निकाल सकते हो। तो अगर साइड में आप जॉब कर रहे हो या आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या स्टडीज कर रहे हो तो उसमें थोड़ा टफ बनता है आपको। फिर जैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर भी रहा था, बाद में जॉब भी कर रहा, तो मॉर्निंग के शिफ्ट में मेरे 2-3 घंटे होते थे, तो दिन में कभी टाइम मिला तो 1-8 घंटे निकाला, तो शाम को 3-4 घंटे, तो फिर 6-7 घंटे एवरेज हो जाता था। तो टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो? कुछ बंदे कुछ ऐसे करते, किसी सब्जेक्ट को उठा लिया, होल एंड सोली दिन भर पढ़ लिया, विद इन वीक खत्म कर दिया। या कुछ क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं, कुछ 3 या 4 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करते हैं टाइम को, तो फिर उसको उसी हिसाब से पढ़ते हैं। तो मेरा ओपिनियन यही, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि हम 2 सब्जेक्ट्स दिन में पढ़ सकते हैं, ताकि आप दो, इसलिए कि आप एक सब्जेक्ट से बोर ना हो। मगर 3 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आपको एक किस्म की कनेक्टिविटी नहीं रहती। अगर आप किसी इशू को पढ़, जैसे आप किसी सब्जेक्ट को 1 घंटा पढ़ लोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली कोई आपको टॉपिक खत्म नहीं होगा, तो आपको अगले दिन जब आप पढ़ोगे तो उसको दोबारा स्टार्ट करना है तो आपको टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप पूरा दिन दे रहे हो, पूरा आधा दिन दे रहे हो, 5-4 आवर एक सब्जेक्ट को, तो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली काफी टॉपिक्स कवर हो जाते और आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो 2 सब्जेक्ट्स पर डे और वो आप न्यूज़पेपर पढ़िए 1 से 1.5 घंटा, तो जिससे आपको थोड़ा बहुत माइंड में रिफ्रेश हो जाएगा। नया न्यूज़ आके या नए इन्फॉर्मेशन आके तो आपका माइंड भी थोड़ा बहुत आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो
एग्जाम के आसपास हो तो थोड़ी राइटिंग प्रैक्टिस 1-1.5 घंटे की, तो इसी तरह आप अपने टाइम स्लॉट्स को डिवाइड कर सकते हैं जी। Any questions? Questions, please. ये डॉक्टर नवाज जी, आप मेरे ख्याल से आप अपने पार्टिकुलरली जो करगिल के बच्चे हैं उनके लिए कुछ मैसेज दे दीजिए अपने बल्टी लैंग्वेज में, सो दैट इट विल रीच टू द वाइडर सेक्शन। तो अभी देखा है कि मतलब कुछ कल परसों भी आ रहे थे, कोई स्टैंडर्ड में, कोई थर्ड स्टैंडर्ड में उसका चाहत रहता है कि सिविल सर्विस के लिए पढ़े। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बल्टी लैंग्वेज में थोड़ा सा उनको मैसेज दे दीजिए। जी, तो मेरा तो मदर टंग शीना लैंग्वेज है, तो मगर फिर भी मैं बाल्टी लैंग्वेज में आई कैन स्पीक। तो सबसे बड़े मैसेज पे दीन कि भाई दी सिविल सर्विस एग्जाम पोंगंतेस अगर ngaz basenda yanta bayin तो ये दिल तार क्वेश्चन के नी एजुकेशन बैकग्राउंड एक नॉर्मल एक पब्लिक स्कूल से हुई है, कारगिल संसद जाफरिया ने स्कूल यहाँ पता हो, मगर उधर स्टैंडर्ड अगर कारगिल ना ठीक ठाक ना का, तो मगर श्रीनगर या लेह में तसे या फिर दिल्ली उधर स्टैंडर्ड पे काफ़ी मतलब खासी अहमियत पाया। तो उधर सब यहाँ मोटिवेशन चार क्वेश्चन के बाद ड्यू अगर स्टूडेंट ये ड्यू ngaz अगर 10 साल कारगिल न सिले तेरे श्रीनगर सिले एक स्कोर से यूजी कर कंगास क्रेक बेंचन यंता बा यंचिन। सो ड्यू एग्जाम में बारे कुछ हवा ज़रूरत नहीं कि ये एग्जाम टफ हो, ये हो, इतना वो करना होता है। इसके लिए काफ़ी स्कूलिंग बैकग्राउंड बढ़िया चार क्वेश्चन का या कॉन्वेंट टाइप या मिशन स्कूल टाइप चार क्वेश्चन ज़रा जिस अपने दिमाग अपने माइंड से निकाल दीजिए, तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो। तो यंता मगर दिल तार क्वेश्चन की भाई यंतंग अभी तो हम कारगिल पाएंगे, मगर हम मंगस एस्पिरेंट्स ऐसे भी देखे हैं मतलब जामिया में कि भाई जो हमसे भी बैकवर्ड है एजुकेशन देखा जाए, रीजन देखा जाए, तो इवन उन कौन सा मल्टी एग्जाम्पल क्रैक हो सकते तो ngata बा बिल्कुल बा यंची बस ngata एक ngata रिजर्व वजह चाहिए भाई सिविल सर्विस ngata चल दंची सोसाइटी फैल दंची या पर्सनल कोई रीजन होते या आमा आता फैल दंची ना। तो मगर मोटिवेशन चाहिए उतना का, तो यहाँ तक लॉन्ग टर्म में सस्टेन चार क्वेश्चन लॉन्ग टर्म में अगर चलो फिर तो सिविल सर्विस में बेहतर पेगा मशहूर क्षेत्र, तो उधर चीज़ कुछ टाइम के बाद आप एक बार सेलेक्ट हो गए उसके बाद फिर वो फेम खत्म हो जाएगी, तो यहाँ मोटिवेशन तो ये जो पीछे जो आपने मेहनत की वो सब पानी में जाएगा। तो मेन तो में होना चाहिए कि आपकी सोसाइटी को सर्व करना, तो आप सोसाइटी यहाँ शी सब हमारा एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड तक भी यहाँ सोसाइटी सर्व का बात क्वेश्चन। तो कारगिल पे आता दरे ज़माना काफ़ी चेंज हो सकता है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो सकता, तो गंती दिल्ली में श्रीनगर में जम्मू में गंती कारगिल पे स्पेशल मांगो, तो आता उधर ना वो गाइड लेने भी आता प्रिपेयर पे इंटरनेट यहाँ ऑल इंडिया लेवल पे जो रैंकर्स होते हैं उधर संगते वीडियो पोस्ट बसे उनकी गाइडेंस से आता प्रिपेयर बाय इंजन। तो यहाँ तक कारगिल और दुख से आप इनिशियल थोड़ा तैयारी करके जा सकते, तैयारी पास आता जामे जगह जल्दी से तैयारी बा इंजन। तो ड्यू एग्जाम्पल अंडर विद प्रॉपर गाइडेंस और विद प्रॉपर स्ट्रेटजी ड्यू क्रैक बा इंजन। जी सर। थैंक यू डॉक्टर नवाज, आपने बहुत अच्छी तरह उनको एडवाइस दिया। रिसेंटली मैंने देखा कि आपके करगिल डिग्री कॉलेज में एक लाइब्रेरी में एक सेक्शन खुला है सिविल सर्विस करके, शायद आपने विजिट किया होगा। तो आप क्या राय देंगे कि बच्चों को कितना उसमें फैसिलिटी से वो यूज करें, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है? जैसे आपने डिग्री कॉलेज करगिल ने से ये एक इनिशिएटिव लिया है कि सिविल सर्विस डेडिकेटेड उनका एक सेक्शन रहे, उसमें जो भी सिविल सर्विस मटेरियल में रखे हैं। तो इस सिमिलर अब ये एक लाइब्रेरी ले में भी शायद होना चाहिए। आपका क्या मतलब विचार है उस बारे में? सर डिस्ट्रिक्ट डिग्री कॉलेज का तो मुझे पता नहीं, मगर डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में एक सेक्शन रिसेंटली हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर ने ओपन किया था, मगर ड्यू टू दिस कोविड पेंडेमिक हाँ सॉरी
वही मैं कह रहा था, वही जो जी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में जो मैंने न्यूज़ में देखा था। जी सर. So I have visited with my some nephews and with some of my friends in that particular library. So but one person has shown me the material. They have good amount of material available for the student. So that library में मैं एक चीज देखना चाहता हूँ कि आप उसी टाइप के सिमिलर एक्सपीरियंस मिलेंगे तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा. घर में आप अकेले हो तो एक अपने एक हवा में होते हो तो शायद उसमें आपको मोटिवेशन कंटिन्यू. लाइब्रेरी में जाओगे तो आप एक दूसरे को देख के भी आप पढ़ सकते हो. तो मटेरियल वाइज भी वहाँ पर स्टैंडर्ड बुक अवेलेबल है. वो मेरे को लिस्ट कहीं से किसी फ्रेंड ने शेयर की थी. तो लाइब्रेरी के हिसाब से तो उसमें मटेरियल ठीक ठाक अवेलेबल है. मगर मैं चाहता हूँ कि इस लाइब्रेरी में थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट ऐसा हो कि एक ऐसा साइड में रूम हो जहाँ पर बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर सके कि मैंने आज ये पढ़ा, मैं ऐसे पढ़ा, मैं ये समझे तो आपने क्या पढ़ा, तो आप कैसे हमें समझाओ. बोल के उससे क्या होगा कि आप अपने आप को किसी भी टॉपिक के बारे में आप डाइवर्सली वो कर सकते हो. इंटरेक्शन करने से आपको माइंड में थोड़ा बहुत होराइजन आपका बढ़ जाता है. तो मैं चाहूँगा कि उस लाइब्रेरी में एक पोर्शन ऐसा हो कि भाई उसमें आप आपस में इंटरेक्शन कर सको. तो और एक चीज़ भी हो सकती है कि आप जो हमारे जैसे अभी हमारे केस ऑफिसर्स यहाँ पर आ चुके हैं फील्ड में जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, या सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने कुछ मेंस लिखा होगा, वो भी काफ़ी आप फील्ड में पाएंगे. तो उनको भी हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको वहाँ पर रेगुलरली विजिट करवा के उन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करवाना चाहिए जो उनको रेगुलरली गाइड कर सके, एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कर सके और कंटिन्यूसली मोटिवेट कर सके. तो शेल्फ में बुक रखने से कुछ नहीं होगा, मगर उनको क्या इसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसके लिए भी एक किस्म का एक एक्सपीरियंस्ड बंदा वहाँ पर होना चाहिए. और डिफरेंट हमारे पास अवेलेबल अभी हैं, केस ऑफिसर्स हैं आपके पास, ऊपर से लेक्चरर्स भी अवेलेबल हैं, या एस्पिरेंट्स से जो जिनमें काफ़ी अटेम्प्ट्स हैं वो भी हैं. तो उनसे भी आप काम ले सकते हैं. Thank you नवाज ने. जी सर. One question is there, Zulfikar, handwriting regarding something. अच्छा. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हैंडराइटिंग मैटर करती है, तो मगर हैंडराइटिंग इतनी भी गंदी नहीं होनी चाहिए कि लेजिबल नहीं हो, एग्जामिनर उसको समझ नहीं पाए हो. मगर आपकी थोड़ी बहुत फैंसी राइटिंग हो, मगर उस फैंसी राइटिंग की वजह से आपकी राइटिंग स्पीड में फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बहुत अच्छा एडवांटेज है. क्योंकि हमने ये देखा है कि जो टॉपर्स होते हैं उनकी राइटिंग बहुत अच्छी, बहुत अट्रैक्टिव होती है. तो उनके मगर आप अगर 20 क्वेश्चंस में थे, अगर उसके एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन में कुछ आपके उस वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ राइटिंग पसंद आया, तो 2-3 क्वेश्चन में आपको एक मार्क्स एक्स्ट्रा दे देंगे, तो उस पेपर में 5 मार्क्स हो गए. फिर बाकी 4 पेपर हो गए तो 20 मार्क्स. तो 20 मार्क्स में आप बंदा पूरी रैंक, पूरी सर्विस एलोकेशन में फ़र्क पड़ता है. तो हैंडराइटिंग डस मैटर, मगर मिनिममली एक एलिजिबल हैंडराइटिंग होना ज़रूरी है. तो अगर आप फैंसी बनाने के चक्कर में आपने अगर एलिजिबिलिटी ख़त्म कर दी तो फिर वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं. जी सर. हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है सर. यस सर, जब हम ये सिविल सर्विस की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तब जब हमें सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में एक इन जनरल एक टॉपिक दिया होता है, बट ये हमें खुद डिसाइड करना होता है कि हमें कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है. बट कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि वो जो थिन लाइन है बिटवीन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो हम कैसे पता करें, हमें कैसे पता चलेगा हमें कितना पढ़ना है और क्या छोड़ना है. थैंक यू. जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि वो ऑप्शंस में आप देखिए वो टॉपिक काफ़ी ब्रॉड होता है, तो आप कुछ भी पढ़ने बैठे. तो मैं बोलता हूँ उसके लिए आप जैसे किसी स्टैंडर्ड आपके नोट्स फॉलो कर सकते, किसी टॉपर, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के. तो उससे बेस्ट मेरे हिसाब से, मैंने पहले भी जिक्र किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स 4 या 5 ईयर्स में वो ज़रूर पूछा होगा, मगर उन्होंने कैसे पूछा है, वो क्या पूछा है, तो आपको उसको वहाँ पर उस क्वेश्चन पेपर को आप एनालाइज करके देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि ये पूछना क्या चाहते हैं. जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में बिटवीन कंट्रीज और रिलेशन होता है, डायरेक्ट पूछिए इंडिया इसराइल के रिलेशन के बारे में आप कमेंट कीजिए, उसको विद रिस्पेक्ट टू ईरान या सऊदी अरेबिया देख के आप एनालाइज कीजिए. तो वैसा ईरान, इंडिया, इसराइल लिखा ही नहीं होता है, मगर आप नीचे सिलेबस में लिखा होता है तो इंडियाज रिलेशन विद
कंट्रीज लिखा होता है, मगर आप कैसे पता चलेगा कि भाई इंडिया स्टाइल के पूछ, मगर आपको न्यूज़ में भी आपको अपने आप को देखना है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा रिपीट हो रहा है, तो उससे भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ये आपके लिए एक अच्छा गाइड है कि भाई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 और 3 में आप डायनेमिज्म बिल्कुल ज़बरदस्त आती है, तो वो उसमें आप देख सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी 1 या 1.5 साल 2 साल के जो इश्यूज होते हैं उससे लिंक होता है उस टॉपिक का क्वेश्चन। जी और कुछ क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? आई थिंक वी आर डन डॉक्टर नवाज, सो अभी टाइम भी काफी हो गया है, तो हम शायद थिंक वी कैन कंक्लूड नाउ। So anybody has any further question, please ask. We can take couple of questions. Thank you, Dr. Navas, for coming here and sharing your experience with the younger generation of Ladakh. And once again, thank you very much. I hope you will continue to guide the aspirants from Ladakh. So wherever you are posted, whichever the service you are allocated, please don't forget something back to the society. So I wish you all the best. I hope you will continue to motivate the youngsters, help the students, particularly the weaker sections of the society. And once again, thank you very much, and wish you all the best. And wish you a bright career ahead. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir, for having me in your platform. Thank you, sir. Thank you, doctor. Thank you. Okay, bye, everybody. Thank you.